we talked about report writing. Today we are going to extend that in the class. Um, we discussed that report writing is the factual information, and it is generally written, not generally, it is always written in past tense, because we are asked to, to narrate or to uh, describe what happened. One thing. Report writing is what we call a formal form of communication, right? Or when we understand the technique of writing a report, we know this, that this is something very precise, clear, factual information that we are going to write. Yeah? So we have in our mind, we have what kind of audience are we writing for. So one important thing about this report writing is the clarity. Clarity about the things that you are going to present in your report, first thing. Second thing, after clarity, what is important in report writing? To be concise, to be short, to be brief. You have to be to the point. There is no introductory line. You have to just begin with the topic that is given to you in the exam on which you are supposed to write the report. But very important thing, when you have to write a report, you need to understand that your report must have a meaning. Your report must provide specific information that is asked. You cannot just talk that I used the phrase yesterday. You cannot beat about the bush, right? So either you are asked to write a report on an incident, you are asked to write a report on some accident, you are asked to write a report on a trip to a celebration. So you must understand that when you write a report, these things you must keep in your mind. After this, when you have made all these uh, points in your mind, after this, what is very important? The knowledge of grammar. ग्रामर में क्या चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, सबसे पहली बात, द रिपोर्ट मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस. Another important thing, report writing is always objective presentation. You will not write personal pronouns. You will not use I think, I believe. It is always objective. तो आप personal pronouns को use, मतलब personal means first person जो है pronoun, वो कतई use नहीं होगा. तो कैसे होगा objective? कैसे होगा जब आप third person pronouns use करेंगे जहां जरूरी है. बहुत बार जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पैसिव होता है रिपोर्ट राइटिंग में, है ना. जैसे मान लो हम कहीं बात कर रहे हैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उस पर रिपोर्ट राइटिंग करो, तो तुम कहते हो ना समथिंग वाज डन, इट वाज अरेंज्ड, ऐसे करते हो आप सेंटेंसेस. तो जहां आप डूअर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो आप कहोगे द चीफ गेस्ट अवॉर्डेड द प्राइजेस. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे जो है यूज करते हैं, आप किस ढंग से अपनी बात को रखते हैं. आपके लिए डूअर इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, आपके लिए वो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एम्फेसिस में आएगा तो पैसिव सेंटेंसेस को यूज करेंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, जब हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव होकर आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने सब्जेक्टिव होकर नहीं लिखनी. आपने तो बताना है कि ये घटना हुई, उसमें ये सब हुआ, ऑल दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपेंड आफ्टर दैट. तो वहां पे डायरेक्ट तो कुछ नहीं रहा ना, देयर ऑल दैट इज नरेटेड, ऑल दैट इज रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. और हमने बहुत ज्यादा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, रिपोर्ट राइटिंग कोई ऐसे नहीं है. Report writing is not going to be very lengthy thing. You can conclude everything, I think, in about 200 words, and your report is written in a very effective manner that way. जैसे हम composition की बात कर रहे हैं, I was talking in the previous lecture about paragraph. In the same way, when we are writing report,
very important thing we need to understand is making rough drafts. Like I told you in detail yesterday, that practice is something that is required in language proficiency. There is no replacement to practice. If you practice writing every day, you will get what I'm trying to say. Whatever points I'm trying to make here, if I'm talking about being concise, if I'm talking about short, being very, being, being able to express your ideas in an apt way, in a precise way, it is only possible if you have practiced it, right? So if you write paragraph every day, if you write report writing every day, you will get that proficiency. You will get that mastery over certain aspects that are required for this um, perfect composition. Yesterday, I mentioned that when you write a report, you always give the date, the time, the name of the reporter. ये कुछ जनरल बातें हैं. तो टाइटल या हेडिंग जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग का. सपोज यू आर आस्क्ड कि आप जैसे मैं कल एग्जांपल दे रही थी, कहीं फायर एक्सीडेंट है, कहीं कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, उस पर आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, तो पहला आप क्या शुरू करेंगे? आप एक हेडिंग, एक टाइटल देंगे. अगर सपोज आपसे कहा गया है ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो आप क्या, उसकी टाइटल ही बन जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. whatever the report that you are writing, heading first important हिस्सा है. आप चाहे उसको कैपिटल्स में लिखें, है ना, मिडिल में लिखें अपनी उस लाइन की. sometimes certain टॉपिक्स आर गिवन जिस पे रिपोर्ट लिखनी होती है, तो उसमें कोई ऐसे प्रोफाउंड इश्यूज होते हैं जो उठाए जाते हैं, तो कई बार रिपोर्ट राइटिंग का जो हेडिंग है वो क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है ना. सम मिसहैपनिंग हैज बीन हैपेंड इन द सिटी, इन सम इंस्टीट्यूट, और फिर उसमें हम हाईलाइट करना चाहते हैं उन लूप होल्स को, उन खामियों को, तो हम क्वेरी क्वेश्चन से भी शुरू कर देते हैं. फिर क्या है, फर्स्ट लाइन में टाइटल आ गया, उसके बाद आप एक, जैसे हमने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो एक रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्ट जो है रिपोर्टेड होती है, सो देयर मस्ट बी समवन जिसने उसको लिखा है. सो दैट मीन्स यू कैन राइट, अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप पे रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैंने ये किसी न्यूज़पेपर को देनी है एज अ रिपोर्टर, मैंने ये कॉलेज मैगजीन, इंस्टीट्यूट मैगजीन में देनी है ना, तो फिर आप एज अ स्टूडेंट एडिटर हो जाएंगे. तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं. सपोज आप लिख रहे हैं, यू से जे शर्मा, है ना, इज द रिपोर्टर, कॉमा डाल के स्टूडेंट एडिटर लिख सकते हो. दिस इज ऑप्शनल. आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट. फिर क्या जरूरी होता है, कहाँ से लिखी गई है वो रिपोर्ट, दैट मीन्स प्लेस, वो कहाँ पे, जो नाम है वो तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया मैंने, टाइटल रिपोर्ट का. सेकेंड लाइन में राइट साइड पे आप लिखो नेम जिसने रिपोर्ट लिखी है. थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, प्लेस, राइट. प्लेस कैन बी, यू कैन the place from where the report is written, उसको हम कुरुक्षेत्र, any place name we can quote. और जैसे जहां बेटे आप प्लेस लिखते हैं, उससे बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखते हैं. और जैसे मैंने हमेशा कहा, डेट का जो फॉर्मेट है ना, वो कंसिस्टेंट ही होना चाहिए. यू राइट 5th December 2021 या December 5th 2021. वो वैसे नहीं लिखेंगे जैसे हम करते हैं ना रिपोर्ट में, वैसा नहीं होता 05.12.2021, ये नहीं हम यूज करते. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे लिखते हैं 5th December, 2021 या December 5th, 2021. देन व्हाट डू वी हैव, ये हो गई बेसिक. और उसके बाद हम द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जहाँ पे हम
मैंने कहा कि हम बीट अबाउट द बुश नहीं करते, लेकिन अगर हमें ब्लड डोनेशन कैंप पे लिखा गया है, लिखने को बोला गया है, वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कहाँ हुआ। वो जो एक इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है ये तुम अपने नोट पैड पे नोट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट बिगिन कर रहे हैं आप अपनी रिपोर्ट को, सो व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट। सो पहली इंपॉर्टेंट थिंग आप बिगिनिंग में ही स्टेट करेंगे, फर्स्ट लाइन में ही स्टेट करेंगे कि व्हाट दिस रिपोर्ट इज अबाउट, है ना। अब रिपोर्ट जो है कोई सिचुएशन पे है, कोई इवेंट पे है, कोई ट्रिप टूर पे है। फिर क्या बताओगे आप? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है तुम सबके आइडिया दिमाग में आया होगा कि हम लिखेंगे मैम कि अब क्या हुआ उसके बाद, है ना, कब हुआ वो। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। पहली बात तो कि ये रिपोर्ट किसके बारे में है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में है, वो सिचुएशन, वो इवेंट, वो ट्रिप, वो टूर, व्हेन डिड इट हैपन, तो ये आप तब मेंशन करेंगे। अच्छा, फिर प्लेस मेंशन करेंगे, वेयर डिड दैट सिचुएशन, इवेंट, ट्रिप, वो कहाँ, वेयर इट टुक प्लेस। अच्छा, फिर who were the people those were involved in that situation, that incident, तो वो आप मेंशन करेंगे। तो अब आप चाहे अपने दिमाग में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रख रहे हैं, चाहे अपने दिमाग में आप जो जो एग्जाम्पल के लिए ब्लड डोनेशन कैंप, तो दैट मीन्स जब आप ये बता दोगे कि कहाँ और कब ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिर आप बताओगे किसने ऑर्गेनाइज किया, फिर आप बताओगे कौन कौन लोग थे। यू विल टॉक अबाउट the staff, the medical staff, you will talk about the NGO, जैसे मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी की बात की, तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे जिनकी सपोर्ट से ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। सो दैट मीन्स जो हम करते थे ना WH वाले क्वेश्चंस, तो हमें बिगिनिंग जो है रिपोर्ट की उसी को आंसर करती है कि वेट, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। ये वाले जो आंसर्स हैं ये हमें बिगिनिंग से, रिपोर्ट की बिगिनिंग से ये सारे क्वेश्चन आंसर होते नजर आते हैं। ये बिगिनिंग की बात कर रही हूँ मैं, जहां से हम रिपोर्ट बिगिन कर रहे हैं। फिर आप इसके बाद क्या करोगे कि वो जो रिपोर्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मैंने अभी कहा सिचुएशन एंड ऑल, आप वहां पे रीजन बताएंगे। ये वो इम्पोर्टेंस हो सकता है। सपोज आपने ब्लड डोनेशन कैंप की बात की है, यहाँ यहाँ हुआ, तो इसका मतलब आप वहां पे बात करोगे दैट व्हाई आर सच कैंप्स organized so frequently. You will talk about the importance of blood donation camps. और क्या बताओगे फिर आप, कहाँ से आगे कहाँ प्रोसीड करोगे? यू विल टॉक अबाउट कितने पार्टिसिपेंट्स थे, है ना। जैसे कि अगर ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो रही है तो यू विल टॉक अबाउट द वॉलंटियर्स। अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यू विल टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज जो वहाँ पे इवेंट में थे, है ना। तो जब आप ऐसी, जो मैं, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने रिपोर्ट राइटिंग की डिस्कशन बिगिन की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, वी टॉक्ड अबाउट कि ये इट इज अ फैक्चुअल प्रेजेंटेशन, है ना। तो यहाँ से वो जो फैक्ट्स हैं वो और ज्यादा क्लियरली प्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा लेंदी तो होती नहीं है रिपोर्ट राइटिंग, तो फिर आप जो जो आइडियाज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आइडियाज ही हैं बच्चे जो आपका पैराग्राफ राइटिंग को इफेक्टिव बनाएंगे, है ना। और वो आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट लगता है, क्योंकि रेपिटेशन नहीं होता ना। पैराग्राफ में आप रेपिटेशन करोगे भी, ये उसी बच्चे को समझ आएगा वन हु प्रैक्टिसेस पैराग्राफ राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग एवरी डे। जो मैं बार बार पहले भी कहा, 10 मिनट पहले, अब भी कहती हूँ, नो पर्सनल ओपिनियन इन द रिपोर्ट इज टू बी गिवन। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव लगनी चाहिए बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग में ना नहीं एडवाइजेबल है कि आप आई या वी को यूज करें। जब हम, क्योंकि अब हमने इतनी ये सब टेक्निकल बात की रिपोर्ट राइटिंग की, रिपोर्ट राइटिंग की एंडिंग हमेशा पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर दिस। जब हम जो जो
मेंबर्स हमने कहा, अभी मैंने कहा ना कि कोई भी इवेंट आप नरेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बताएंगे कि उसमें कितने वॉलंटियर्स थे, कितने मेंबर्स थे। तो इसका मतलब जब आप कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के, तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे जो मेंबर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं किसी भी इवेंट के, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जो इवन अच्छा, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट है और वहाँ पे जो रेस्क्यू पार्ट है ना, वो हाईलाइट होना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिपोर्ट, बिकॉज पॉजिटिव नोट पे एंड होनी चाहिए, है ना। मतलब किसी नेगेटिव जो इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनकी एंडिंग रिपोर्ट राइटिंग में यू कैन से दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू कैन, मतलब दिस इज द वे report writing can be concluded. Ma'am, हाँ बेटे। ma'am, if we talk about the Kedarnath tragedy, then Okay, if we talk about Kedarnath tragedy, what will be your report about that? What happened in that tragedy? yes, ma'am. हाँ तो प्रेरणा, you must talk about the positive points also. You will say that this is a natural calamity that took toll over so many lives, है ना? The whole life structure destroyed. This is there, definitely this is there. But the kind of human spirit, the endeavor that was put into, वो भी हम फोकस करेंगे, वो भी हम कंक्लूजन में ला सकते हैं ना, दैट वो एक जो स्पिरिट है, द रेस्क्यू पार्ट, जो जो कर पाए ह्यूमन बीइंग्स अपने Yes, लेवल ma'am. पे, दैट वाज डन। सो वी कैन So, टॉक ma'am, in अबाउट this we दैट। have to talk about both the positive and negative aspects यस of यस this. यस, हाँ वो एक अच्छा लगता है उससे, क्योंकि हमने अभी कहा रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट न्यूट्रल वे ऑफ राइटिंग फैक्ट्स, तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हम ये भी कहें कि अगर नेगेटिव हुआ तो देर आर Hmm. पीपल, देर आर सेक्शंस, दोज हु वर्क अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। Okay, ma'am. अच्छा सपोज अभी हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट राइटिंग हम लिखेंगे, हम कोई ऐसी ऐसा हमने स्पीच सुना, कोई टॉक सुनी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर किसी ने टॉक दी, है ना, उस पर हमने रिपोर्ट लिखनी है। तो जो प्रेरणा तुमने अभी क्वेश्चन किया, तो क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा टॉपिक है, जो स्पीकर ने जो कहा तुम वो लिखोगे, फाइन, दैट इज देयर। तुम कंक्लूजन में, जब मैंने कहा पर्सनल व्यू नहीं दे सकते, लेकिन उसको जनरल बनाकर लिख सकते हो तुम, क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स की जब बात करोगे। Suppose you are given this question, there was the speaker who spoke about this topic, climate change and its impact, in a one day workshop or in a one day seminar. तो फिर इसका मतलब जब आप बताओगे इसमें वही बिगिन करोगे, कहाँ कब क्या क्या बोला स्पीकर ने, तो एक दो लाइन आप कंक्लूजन की तरफ जाते जाते, जब मैंने कहा आप बिगिनिंग में भी थर्ड फोर्थ लाइन में यू कैन टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, और यू कैन टॉक अबाउट द इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंस नहीं तो इम्पैक्ट करोगे, आपके कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है ये हमारी डे टू डे लाइफ को, है ना। जैसे Yes, आप, यू कैन ma'am. टॉक अबाउट, यू कैन इवन टॉक अबाउट प्लास्टिक वेस्ट, दैट इज सच अ बिग न्यूसेंस फॉर ऑल ऑफ अस। यू कैन टॉक अबाउट व्हीकल्स, द काइंड ऑफ पोल्यूशन। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ बच्चों तुम लोगों को कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, ओनली विद योर आइडियाज यू कैन मेक डिफरेंस। मेरा जो कोशिश है वो ये बताने की है आपको, है ना। और आइडियाज कब आते हैं? द मोर यू थिंक, द मोर यू रीड। ये सब लिंक्ड है, जो मैंने कल बात की थी वो आज भी दोहरा रही हूँ कि एडिटोरियल सेक्शन है जो न्यूज़पेपर्स का, वो बहुत अच्छा सेक्शन है जहाँ पे आप अपने आइडियाज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप ज्यादा पढ़ते हैं द ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, तो आप अपना आइडिया भी वहाँ पे एक तरह की कॉन्फ्रंटेशन होती है कि मैं ऐसे सोचती या सोचता हूँ और ये इन्होंने ऐसे रखा है इस बात को, इसका ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल वे। एक मैंने और कल आपको एडवाइस दिया था कि आप जब भी कुछ लिखते हैं, सपोज यू राइट अ पैराग्राफ, यू राइट अ रिपोर्ट, तो आप अपनी जो पीयर ग्रुप्स हैं, है ना, जैसे आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, तो आप वहाँ शेयर कीजिए, अपने एक दूसरे की इवेल्युएशन कीजिए। दैट इज अ वंडरफुल वे ऑफ लर्निंग अमंग योर फ्रेंड्स, जो कि मैं देखती हूँ हम नहीं करते हैं। हमारे वो पर्टिकुलर दो या तीन फ्रेंड्स होते हैं, वी डोंट इवन कॉन्वर्स मच अबाउट एकेडमिक्स,
पता नहीं ये कैसे चेंज होगा, बट इसको अगर हम करें चेंज, दिस इज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लर्निंग. सो व्हेन, अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको क्लाइमेट चेंज का, तो दैट मीन्स आपको एक ऐसी रिपोर्ट लिखनी है जो एक ऐसी इवेंट पे है जो क्लाइमेट चेंज पे हुआ है ना, इसके इम्पैक्ट्स पे हुआ. तो टाइटल क्या बनाओगे फिर ऐसी रिपोर्ट का? आप ऐसे ही बनाओगे, सीधा तो नहीं लिखोगे ना क्लाइमेट चेंज. क्या लिखोगे आप? अ सेमिनार ऑन, एन इवेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, या एन इवेंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट. ये आपकी टाइटल हो गई. नेक्स्ट, उस पे आप सीधा नेम लिख सकते हो, राइट साइड पे रिपोर्टेड बाय करके लिख सकते हो, है ना. जैसे मैंने एक नेम दिया था जय शर्मा, सो यू कैन से रिपोर्टेड बाय जय शर्मा. यू कैन टॉक, नेक्स्ट लाइन में यू कैन राइट प्लेस. आप प्लेस अपने ऐसे भी लिख सकते हो, IHS कुरुक्षेत्र. दैट विल बी आई थिंक मोर एप्ट. आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, साथ में सिटी लिखिए. फिर मैम नेक्स्ट लाइन में, हाँ बेटे. कौन सी साइड में होगा जैसे नेम इंस्टीट्यूट का या फिर? वो लेफ्ट साइड पे होगा, नेम राइट साइड पे, क्योंकि वो ना हो ना. जैसे फर्स्ट लाइन में हमने कहा टाइटल आ गया हमारी रिपोर्ट का, सेकंड लाइन में हमने राइट साइड पे लिख दिया नेम, जो रिपोर्टेड बाय लिख दिया है ना, या सीधा नेम लिख दिया. नेक्स्ट उसी लाइन में, उससे नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में हमने प्लेस लिख दी. ठीक है, IHS कॉमा कुरुक्षेत्र. फिर उससे नेक्स्ट लाइन में हमने डेट लिख दी, जैसे वो मैंने तुम्हें बताया था, या 5 दिसंबर 2021 या दिसंबर 5 2021. अब जो रिपोर्ट राइटिंग है, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट लाइन में ही तुम शुरू कर दोगे कि ऑन दिस एंड ऑन दिस डेट, है ना. तो अगर IHS ने ऑर्गेनाइज किया है ना, तो ऑन दिस डेट IHS organized a seminar, organized a session, organized an event, anything that you want on वो topic climate change, global warming, whatever the topic you choose, है ना. तो कहाँ, उसी जगह भी बताओगे ना, असेंबली हॉल में किया, सेनेट हॉल में किया, यूनिवर्सिटी के कहाँ उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उस इवेंट को डिपार्टमेंट में किया गया, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो बता सकते हो. फिर आप देखो, इसी जैसे मैंने कहा, आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो, आप ये सारी बातें एक ही सेंटेंस में भी कर सकते हो, है ना. ऑन सो एंड सो डेट IHS ऑर्गेनाइज्ड कौन सा इवेंट, है ना, कहाँ पे, इन असेंबली हॉल, इन सेनेट हॉल. और उसी सेंटेंस में आप लिख सकते हो वेयर करके, वेयर सो मेनी स्टूडेंट्स of the institute and university got the opportunity to hear delegates speaking over this important crucial topic. इस तरीके से आप sentences frame कर सकते हैं, about they got the opportunity to hear uh, expert views on global warming and its impacts. सो दिस इज हाउ, मैं जैसे बोल रही हूँ कि जितना आप ज्यादा लिखेंगे, आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं, राइटिंग एक्सप्रेशंस, वो आप लिख पाएंगे. हाँ साक्षी, तुम कुछ कह रहे हो बेटे? योर माइक वाज ऑन. तो फिर जब हम ये कोट करेंगे, उसके बाद वी कैन बिगिन विद द न्यू सेंटेंस, जहाँ पे आप उस इवेंट की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, उस सेमिनार के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, कि उससे स्टूडेंट्स वर एजुकेटेड अबाउट दिस क्रूशियल, दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. फिर वहाँ पे आप बताओगे कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, है ना, जिन्होंने अटेंड किया वो लेक्चर, वो सेमिनार. कौन कौन और डिस्टिंग्विश्ड रिनाउंड गेस्ट स्पीकर्स थे उस इवेंट या उस सेमिनार में, है ना. तो क्या, जो मैंने अभी कहा कि इम्पोर्टेंस के लिए आप बता सकते हैं, तो फिर वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज की गई, है ना, उसने हमें अवेयर किया, एजुकेट किया अबाउट द रॉन्ग डूइंग्स, अबाउट द वेज दैट वी आर, नॉट वी, दैट पीपल लिखेंगे हम, the
seminar was focused to educate the students or to make the students aware about certain activities, some wrongdoings that people are indulged into. ऐसा ही होता है ना, हम सब कहते हैं प्लास्टिक वेस्ट इज वेरी डेंजरस, और मेरे अपने घर में ढेर लगा होगा प्लास्टिक का, बिकॉज वो लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तो जब तक हम अपने लेवल पे पर्सनल इंटेग्रिटी के साथ उस पर काम नहीं करते तो वो रॉन्ग डूइंग्स ही हैं हमारी। So we can talk about the earth that is considered as mother, or uh, the kind of treatment we are giving to, to the mother earth. What kind of impact do we have after using so much of plastic? The kind of waste that we are throwing into different resources, either it is a river or it is a sea, उसका जो impact है, that can definitely be talked about. लेकिन जो बात तुम लोगों से कर रही हूँ बेटे, कि जब तक आइडियाज की कलेक्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी रिपोर्ट कन्विंसिंग नहीं बनती। अगर तुम्हें ये बातें पता हैं जो मैं अभी कह रही हूँ, जैसे प्लास्टिक वेस्ट की बात मैंने क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट कर दी, तो तुम ये भी बात कहोगे कि जो प्लास्टिक है दैट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सारी बातें तो हम ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं ना, ये तो हमें आइडियाज से आती हैं, है ना। तो अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, जब वहां पे डंप किए हैं हमने ओपन में प्लास्टिक्स को, तो दैट मीन्स मदर नेचर तो अफेक्ट हो ही रही है ना। So that is how we can talk about that the speaker, the delegates, the renowned speakers, they focused on, they emphasized this point that Mother Nature is a treasure that we must conserve. और फिर तुम जैसे कंक्लूजन में मैंने कहा, तुम कहोगे कि जितने भी स्टूडेंट्स, all the teachers and students, were highly motivated towards the end of the lecture, towards the end of the seminar. They all agreed that yes, these points need to be remembered, and this talk came as a much needed reminder for everyone present there, and they took an oath to treat nature as a very precious treasure of this life. आई होप, मुझे पता है मेरी क्लास में अभी जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उन वो सब सहमत हैं इस बात से, वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक द पॉइंट्स Yes, अबाउट द ma'am. सर्टेन टॉपिक। हाँ, बस ये है बच्चों, जितना तो आज हम करेंगे कुछ टॉपिक्स पे बात, और ऐसे ही आपने उन टॉपिक्स पे रिपोर्ट्स लिखनी है। द मोर यू राइट, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी दैट यस आई कैन राइट रिपोर्ट्स। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना पढ़ना, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। सो ये हमारी कॉम्पोजिशन पे भी अच्छा असर पड़ता है इससे। एज अ स्टूडेंट you get confidence to write, to present something when you have the practice of writing. यहाँ तक तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कोई है तो यू आर फ्री टू आस्क। यस मैम, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट नोटिस को बॉक्स में बंद करते थे, तो इसको भी करना है रिपोर्ट को। कैसे बंद करते थे? जैसे हमें 12th तक बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट को ऐसे आप बॉक्स में करोगे। बॉक्स में, ओके बॉक्स, हाँ हाँ लिख सकते हो पीयूष, बॉक्स में कर सकते हो, बट इट इज ऑप्शनल। रिपोर्ट आप लिख सकते हो बॉक्स में, ये कोई ओके मैम। कंपल्सरी नहीं है। और पीयूष एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट। ओके मैम, एडवर्टीजमेंट। यस।